Fourth year English, lecture number 3, topic The Old Man and the Sea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fourth year class, how are you all students? I hope you all fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Dear students, I say welcome to all of you in my class, and let's continue our novel that we were studying from the previous lectures. Yes, dear students, tomorrow is going to be a good day with this current, he said. Now, as you can see that in previous lecture, beta, we read that the old man whose name was Santiago, he remained unlucky for 84 days because basically he was a fisherman and he used to fish in the big sea, but for the last 84 days he wasn't able to catch any fish. That's why the other fishermen and the other people, they started calling him unlucky. But he did not lose heart and he did not mind their words. Okay, so he had a boy who was his student and he taught him the art of fishing. But the boy had also left him due to his parents' advice, because they wanted him to send to a lucky boat. But he still loved the old man and he often comes to him and he talks to him. ठीक है बेटा? So let's start. Tomorrow is going to be a good day with this current, he said. अब दोनों जो है बेटा आपस में बातें कर रहे हैं. अब वो ओल्ड मैन इसको कह रहे हैं कि tomorrow एक जो next day है is a good day. वो अच्छा दिन होगा, ठीक है? To is going to be a good day with this current. Current means sea की बात कर रहे हैं, ठीक है? समंदर के साथ अच्छा दिन होगा. He said, where are you going? The boy asked. Boy ने पूछा कि where are you going? Far out, बहुत दूर. To come in when the wind shifts. Shifts means change direction. I want to be out before it is light. ठीक है कि लाइट होने से पहले जो है ना दिन चढ़ने से पहले आप कहते सूरज की रोशनी होने से पहले जो है वो मैं जाना चाहता हूँ. I will try to get him to walk far out, the boy said. Then if you hook something truly big, we can come to your aid. कहता कि मैं भी अपने जो मेरा मास्टर है, I will also tell him to work far out, कि हम भी ज़रा समंदर में आगे करके जाएंगे. And if you find a big thing mean if you find a big shark or you can say fish, so we will help you, we will come to your aid. Aid mean help, तो हम तुम्हारी मदद के लिए आएंगे. He does not like to work too far out. ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करता. No, the boy said. But I will see something that he cannot see, such as a bird working, and get him to come out after dolphin. कहता है कि but I will see something that he cannot see. लेकिन मैं वो चीज़ देख सकता हूँ जो कि वो नहीं देख सकता. As a bird working and get, जैसे कि एक bird जो है वो काम करते हैं. Mid से the birds can see too far ना, क्योंकि they fly high in the sky. So are his eyes that bad? क्या कि उसकी आँखें इतनी ख़राब हैं? अच्छा बेटा, he is almost blind. कहता तकरीबन अंधा ही है, ठीक है? उसको सही नज़र नहीं आता. Okay. And get him to come out after dolphin. Are his eyes that bad? He's almost blind. It is strange. The old man said he never went turtle-ing. That is what kills the eyes. But you went turtle-ing for years off the mosquito coast and your eyes are good. But the turtle-ing जो है, it is a game play, or you can say game play strategy है. That emphasis heavy defense, कि इससे जो है बेटा heavy defense आप अपना defense कर सकते हो. This is a strategy. बहुत सारी चीज़ें बेटा जो कि इस fishing जो है इसमें सीखने के लिए होती हैं. So many fishermen they don't know as the old man he knew. ठीक है? So कहता है कि उसने कभी जो है वो turtling नहीं किया. So I am strange. कहते हैं कि the boy कहते हैं कि but you went turtling for years. लेकिन आप तो बहुत अरसे तक ये काम करते रहे हो. Of the mosquito coast पे, and your eyes are good, और तुम्हारी आँखें भी बहुत ठीक हैं. I am a strange old man, but you are strong enough now for a truly big fish. But are you strong enough now for a truly big fish? कि आप बड़ी fish के लिए आप इतने strong हो that you can catch a big fish? I think so. And there are many tricks. कहता है हाँ मुझे लगता है, और वहाँ बहुत सारे tricks भी हैं. Let us take the stuff home, the boy said, so I can get the cast net and go after the sardines.
ठीक है। अब कहते हैं कि चलो अब ये जो हमारा सामान है, ठीक है, जो सारी जो उनको बेटा बोर्ड पे चीज़ें चाहिए होती हैं, कहते हैं लो इसको लेके घर चलते हैं, ठीक है। एंड सो आई कैन गेट द कास्ट नेट और एंड गो आफ्टर द सारिन, ताकि मैं वो कास्ट नेट जो नेट है वो ले लूँ और सारिन जो है वो उनके पीछे जाऊँ। सारिन क्या बेटा, स्मॉल फिश, मैंने आपको कल बताया था। दे पिक्ड अप द गियर फ्रॉम द बोट, ओके, उन्होंने गियर जो है वो इक्विपमेंट, बेटे इसको गियर जो है इक्विपमेंट है, ठीक है, कोई आला है, सामान है, होता है इनकी जो फिशिंग में यूज़ होता है, ओके। सो दे पिक्ड अप द गियर फ्रॉम द बोट, द ओल्ड मैन कैरीड द मास्ट ऑन हिज शोल्डर, उसने जो मास्ट था, ये मास्ट आप समझते बेटा, ये जैसे ये इसके बोट के ऊपर लगा होता है, ठीक है, तो इसको हम मास्ट कहते हैं। कहते हैं उसने वो उठाया ऑन हिज शोल्डर, and the boy carried the wooden boat with the coiled, hard, braided brown lines, the gaff and the harpoon with its shaft. Okay, and the boy carried the wooden boat. अब वो जो wooden boat थी उसको थोड़ा सा आगे ले आया with the coiled, coil mean twisted, ठीक है, okay, with the coiled, carried the wooden boat with the coil hard braided. hard braided बेटा, hard braided का मतलब है twisted, ठीक है। और कॉयल आपको पता है कि जो वो राउंड से शेप में जैसे रस्सी होती है राउंड में, उसको कॉयल कहते हैं। वुडन बोट विद अ कॉयल हार्ड ब्रेडेड ब्राउन लाइंस, वो कॉयल की फॉर्म में थी कि रस्सी, जैसे रस्सी को बेटा रखा जाता है ना गोल सी शक्ल में, ठीक है, तो उसको वो कह रहे हैं हार्ड ब्रेडेड ब्राउन लाइंस। ब्राउन लाइंस क्या है, लाइंस क्या होती है, कॉर्ड, रस्सी। द गैफ, एंड द गैफ बेटा स्पेयर को कहते हैं। एंड द हार्पून, हार्पून भी इक्विपमेंट का नाम है, विद इट्स शैफ्ट, ओके बेटा, शेफ क्या है, शेफ भी वेपन है। सो बेटा ये सारे जो नेम जो आपको थोड़े से अनयूजुअल लग रहे हैं, दीज आर ऑल द इक्विपमेंट्स दैट आर यूज्ड बाय द फिशरमैन, ठीक है। सो द बॉक्स विद द बैट्स वॉज अंडर द स्टर्न ऑफ द स्केफ, ओके। अब क्या करें, द बॉक्स विद द बैट्स, बैट्स के हुक्स, ठीक है, फॉर कैचिंग फिश, ओके। द बॉक्स विद द बैट्स वॉज अंडर द स्टर्न ऑफ द स्किफ, ओके। स्किफ क्या है, वॉज यूज्ड टू, स्किफ भी बेटा ये भी आपका एक वेपन कह लें, ठीक है। ये हमने स्किफ पिछले बेटा लेक्चर में क्या पढ़ा था, स्किफ क्या है, स्मॉल बोट है, सॉरी ये स्मॉल बोट है, ओके, छोटी सी कश्ती को स्किफ कहते हैं। सो व्हेन दे वर ब्रॉट अलोंग विद द क्लब दैट वाज यूज्ड टू सबड्यू द बिग फिश, व्हेन दे वर ब्रॉट अलॉन्ग साइड, कि वो सबड्यू उसको कैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। व्हेन दे वर ब्रॉट अलॉन्ग साइड, जब उसको वो आगे लेके आते हैं। नो वन वुड स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैन बट इट वॉज बेटर टू टेक द सेल एंड द हैवी लायंस होम एज द ड्यू वॉज बैड फॉर दैम। कहते नो वन would steal from the old man, it's mean के nobody could steal these things of the old man, ठीक है, but it was better to bring all these things into the home because the dew was bad for them, क्योंकि जो weather था या जो उसमें dew drops थे, they were bad for them, and though he was quite sure no local people would steal from him, the old man thought that a gaff and a harpoon were needless temptations to leave in a boat। तो उसने समझा कि although के जो local people हैं, they would not steal these things, but it is not better to leave all these things in the boat, ठीक है। They walked up the road together to the old man's shack, okay बेटा, what is shack, shack mean hut, ठीक है, उसका जो मकान है। So they walked up the road together to the old man's shack and went in through its open door, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था बेटा, उसके अंदर चले गए। The old man leaned the mast with its wrapped sail against the wall and the boy put the box and the other gear beside it। उन्होंने बेटा जितनी भी चीज़ें थी, मास्ट था और wrapped with its wrapped sail था, बादबान था, वो झंडा सा था, ठीक है, सारी चीज़ें बेटा उन्होंने वहाँ पे रख दी। The mast was nearly as long as the one room of the shack, ओके। और वो मास्ट कहते इतना बड़ा था जितना कि एक रूम हो सकता है, आपको पता है ना, तो कितना बड़ा होता है। सो द शैक वॉज मेड ऑफ द टफ बड शील्ड्स ऑफ द रॉयल पाम विच आर कॉल्ड guano, and in it there was a bed, a table, one chair and a place on the dirt floor to cook with charcoal, ओके बेटा। हम कहते हैं कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। शेक वॉज मेड ऑफ द टफ बर्ड शील्ड से बना हुआ था, ठीक है। ऑफ द रॉयल पाम विच आर कॉल्ड गुआनो, उसको क्या कहते हैं, गुआनो कहते हैं, ठीक है। गुआनो किसको कहते हैं बेटा, एक्सक्रीमेंट ऑफ बर्ड्स, जो कि बर्ड्स का जो गंध होता है, ठीक है, उसको गुआनो कहते हैं, ओके। सो एंड इन इट देयर वाज अ बेड, अब सारी चीज़ें बेटा पड़ी थी, बेड, टेबल, चेयर, ठीक है, और जो है वो एक चाकोल पड़ा हुआ था, मतलब कि चाकोल किसको कहते हैं बेटा, कोयले को कहते हैं, और वो उससे खाना पकाते थे। ऑन द ब्राउन वॉल्स ऑफ द flattened overlapping leaves of the sturdy fibered guano there was a picture in color of the sacred heart of Jesus and other of the Virgin of Copper,
बेटा वहाँ पे एक पिक्चर पड़ी थी जो कि इस चीज़ को एग्जिबिट कर रही थी, सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस को एंड अदर ऑफ द वर्जिन ऑफ कॉबर, और इन चीज़ों को जो है वो ये डिस्प्ले कर रही थी। इनकी कोई इतनी खास अहमियत नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। दीज वर रेलिक्स ऑफ हिज वाइफ। रेलिक्स मीन जो है वो मेमोरीज सेव थिंग्स, ये मेमोरीज़ हैं जो कि उसकी वाइफ की थी। रेलिक्स में तो ओल्ड चीज़ें होती हैं, पुरानी चीज़ों को कहते हैं, सीक्रेट चीज़ों को कहते हैं, ठीक है। सो वंस देयर हैड बीन अ tinted photograph of his wife on the wall, but he had taken it down because it made him too lonely to see it, and it was on the shelf in the corner under his clean shirt. अब बेटा कहता कि वहाँ पे जो है उसकी वाइफ की भी पिक्चर थी, ठीक है, tinted मीन कलरफुल पिक्चर थी उसकी वाइफ की, बट whenever he saw that picture he always feel sad, so that's why he took out that picture from the wall. उसने वॉल से वो पिक्चर उतार ली थी, एंड इट वॉज ऑन द शेल्फ इन द कॉर्नर, और उसने शेल्फ में रख ली थी इन द कॉर्नर अंडर हिज क्लीन शर्ट, अपनी साफ सुथरी शर्ट के नीचे उसने बेटा उसको रख दिया था। सो इट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर बेटा। आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड इट, एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी एंड आई विल इंशाल्लाह एक्सप्लेन इट अगैन। सो बेटा टिल नेक्स्ट लेक्चर स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।